ٹھیک ہے، اسی طرح ضیاء امینی کو دیکھ لیں، اسی طرح مفتی مبشر صاحب کو دیکھ لیں، وہ سامنے فرنٹ پر اس طرح کھل کر نہیں آتے۔ یہ جو گجر 22 ہو گیا، یہ آکاش ملک ہو گیا، یہ اپنا کلر کے نام کے اوپر آئی ڈی ہو گئی، کچھ اور اس طرح کی آئی ڈیاں ہیں، سافٹ کے نام سے ہے، اور پھر شاہد کے جو بیٹھنے والے لوگ ہیں، عامر امان ہے، اس میں سرفراز ہے، اس میں اور مطلب بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ لوگ ہیں ننگے تلنگے، یہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں یہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ سندھو جیٹ آپ کبھی دیکھیں کہ انہوں نے کبھی آپ کے لیے یہ بات نہیں بولی، کیا وجہ اس کی؟ جی سندھو آپ کے لیے یا میر کے لیے آپ لوگ ان کی سریعت مخالفت کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں، آپ کو عمر باب صاحب اس بات کا جواب میں دینا چاہوں گا اگر مناسب جی 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 موسٹ ویلکم۔ جی انہوں نے کیا عمر صاحبہ، وہ جو ہے نا آپ نے جو بات کی، ہو سکتا ہے میں اس میں غلط ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ سندھو جٹ کو بھی ایسے کرتے ہیں کہ آسمان پہ لے کے جا کے نیچے پھینکتے ہیں، بار بار اتنی گالیاں دیتے ہیں جی کہ آپ یہ بچ جاتا ہے گرنے کے باوجود۔ لیکن وہ بات کو آپ مسلسل سمجھ نہیں شاہد ہیں، وہ بھائی کو معافی نہیں ٹارگٹ دیتے، نہیں کسی کرتے، کو بھی معافی نہیں وقتی دیتے۔ طور پہ گالی دے کے اتار دیتے ہیں، لیکن ٹارگٹ وہ ان لوگوں کو کرتے ہیں جن کا ان کو پتا ہے کہ ان سے ان کی ریٹنگ بڑھے گی، ان کے ساتھ ان کے ٹاپک میں مطلب وہ رہے گا، لوگ ان کو سنیں گے، ان ٹاپک کو زیادہ لے کے چلتے ہیں۔ میں نے تو یہ نوٹ کیا ہے۔ فیضی کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں شاہد عبارہ کی بات کر رہی ہوں نا، یہ جو کیونکہ ان کے پاس خود تو کچھ ہے نہیں ہے ڈیلیور کرنے کے لیے۔ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیضی ہے یہ باقی سب کو تو بولتا ہے، لیکن یہ شاہد گروپ کے بارے میں کیوں نہیں بولتا؟ ہم تو علیہ اعلان بولتے ہیں کہ جی وہ گالی باز ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو وہ گالی دیتے ہیں، آپ برداشت کر لیتے ہو، لیکن وہ فیضی نہیں ان کی گالیاں برداشت کر سکتا۔ اگر عابد نذیر ہے وہ اس طرح گالی نہیں دیتا، وہ طریقے سے تہمت لگوائے گا، کسی سے کروائے گا، وہ ڈائریکٹ نہیں کرتا عابد نذیر۔ وہ جن کی مخالفت کرتا ہے نا، آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، وہ کھلے جو ننگے تلنگے لوگ ہیں ان کو وہ ان کی مخالفت نہیں چاہتا فیضی۔ نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو شاہد ہے اور یہ جو گالی باز گروپ ہے یہ کھلے اور ننگے تلنگے نہیں ہیں؟ یہ ننگے تلنگے ہیں نا، ان کی مخالفت نہیں کرتا نا۔ تو میں آپ ہاں تو کیوں نہیں کرتا نا؟ یہی تو منافقت ہے کہ اپنی اس مرضی وجہ کے سے لوگوں کہ وہ ان کی منافقت۔ مخالفت افورڈ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ جس کی مخالفت افورڈ کر سکتے ہیں اس کی کریں، جس کی نہیں کر سکتے اس کی نہ کریں۔ بالکل، فیضی کی یہی اسٹریٹجی ہے۔ دیکھیں عامر نذیر ہے، وہ گندی فوش گالی تو نہیں نہ نکالتا، ٹھیک ہے، وہ جو بھی مخالفت کرتا ہے اپنے طریقے سے کرتا ہے وہ، لیکن یہ جس طریقے سے ماں بہن اور اس طرح کی گالی نکالتے ہیں، فیضی نہیں چاہتا کہ اس کے بچوں کو یا اس کو ٹارگٹ کیا جائے۔ آپ کو آواز آ رہی نہیں؟ جی جی آ رہی ہے یہ آواز آ رہی ہے، ہم سوچ میں تو پڑھ گیا، دوسروں کا بتا رہے ہیں۔ چلیں آپ اور بتائیں، آپ کی لائف کیسی گزر رہی ہے اور کیا معاملات ہیں، کیا پلان کیا ہے آگے؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہے کہ کل ایک صاحب آئے تھے، کیا نام تھا، شیخ چلی کے نام پہ، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ یہاں پر عالم نہیں بیٹھے ہوئے، یہاں پر ہر بندہ اپنی مرضی سے جو اس کو سمجھ میں آتا ہے وہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ کنفیوژن اور زیادہ پریشانی کا سبب ہوتی ہیں چیزیں۔ اور ہر بندہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ عقل کل ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ جو مرضی بولے، وہ اسپیچ آف فریڈم کو ناجائز استعمال کر رہا ہے دین کے اوپر بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جو براڈز کے اوپر جو کر رہی ہیں تو ان کو بھی ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے، جس کے اوپر میں اسی کے اوپر کام کر رہی ہوں کہ وہ لوگ جو صحیح معنوں میں کام کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، کم از کم ان کے اوپر بھی تو کام کیا جائے۔ ہم ہر بندے کو کہہ دیتے ہیں یہ مسلمان ہے، بے شک اس کا جس طرح مرضی بھی ہے وہ، تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ آپ جواب دیں مجھے۔ واٹس ایپ
एक कॉल जी मैं करता हूँ। उमर बाब साहबा, मैं हूँ तो मुझे भी तो वैसे तो गालियाँ पड़ती हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं देता, कभी उनकी बात का गौर ही नहीं किया, ना कभी ऐसा दिमाग रखा है बस चलते हैं तो निकालते हैं तो निकालते रहे, तो वो खुद ही मर जाते हैं। मैंने तो ये तजर्बा पाया इधर आके, जो निकालता रहे, आखिर एक दिन थक के वो खामोश हो जाता है अगर कोई ऐसे बात है। मैंने तो शाहिद भाई, ये एक्सपीरियंस हासिल किया है इधर से। शाहिद भाई मुझे ये बताइए कि सैयद जफरुल्लाह शाह साहब को कल मैं स्क्रॉलिंग कर रही थी, इतनी गालियां दे रहा था एक आदमी, सॉफ्ट नाम की उसकी आईडी थी, इस कदर गलाजत बोल रहा था कि आपकी सोच होनी। हालांकि मैं तो कभी किसी को जफरुल्लाह जवाब शाह नहीं दिया। साहब की मुकाबले का नहीं, मैं तो एक आम शख्स हूँ। वो तो आलम दीन है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, वो एक बहुत आला ओहदे पे फैज़याब है, तो वो जो है, लेकिन उनका एक अपना तरीकाकार है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे तो कोई दे तो मैं समझता हूँ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहता रहे, खुद ही वो मर जाता है जो कहता है, गालियाँ देता है। तो ये मेरा, मैंने तो यही तजर्बा पाया। वो तो माशाअल्लाह साहब इल्म है, अल्लाह ताला ने उनको नवाजा हुआ है इल्म। मैं यही कह रही हूँ कि शाह जी भी तो खामोश हैं, 3 महीने से लोग उनको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी करते जा रहे हैं ना, क्योंकि वो एक मशहूर ये तो बात शख्सियत है। आपकी ठीक है, जो बात ठीक है वो ठीक है, ये आपने सही बोला। मेरे कहने का मतलब है कि हर कुछ आपकी तरह आपको एक दफा उतारा, गाली दी, चले गए, लेकिन उनको तो मुसलसल टारगेट किया जा रहा है, हालांकि वो तो जवाब नहीं दे रहे। यानी ये स्ट्रेटजी जो आप बता रहे हैं वो हर बंदे के ऊपर नहीं नाफिज होती, मेरा ये मतलब है। ये भी बात सही है, ठीक है, ये बात आपकी सही है। कुछ लोग आते ही रेटिंग के लिए हैं, जो टॉप पर ऊपर लोग होते हैं। देखें, शुरू में शाहजी बहुत कम आते थे, लोग उनको पसंद करते थे। मेरी ब्रॉड पर आते, 1-2 ब्रॉड्स पर चले जाते, वहाँ पर अच्छी गुफ्तगू होती और शाहजी को लोग सुनना पसंद करते थे। फिर शाहजी ने अपनी ब्रॉड लगाना शुरू की, लोगों ने सुनना शुरू किया। शुरू फिर में बहुत मुखालफत बढ़ गई, जैसे ही उन्होंने ब्रांड लगाना शुरू की, मैंने अच्छा देखा है कि वो जी, मुखालफत बढ़ अच्छा गई। उम्मे सिस्टर, जैसे देखें माशाल्लाह आपके पास कुरान हदीस का बड़ा नॉलेज है। चलें, आपने वो तो मजहबी ब्रॉड तो आपने लगाना छोड़ दी हैं, और आपने कहा है कि जी आप इस पे बात नहीं करेंगी, लेकिन नॉर्मली मैं मतलब एक आपसे एक एडवाइस लेना चाह रहा हूँ कि ये जो मरज़ियत का ये जो फितना है, इससे अगर आम मुसलमान को बचना हो उस मिर्ज़े काणे के मतलब धजल से, क्योंकि आपको पता है कि ये मरज़ई इतने फनकार और इतने धोखेबाज हैं कि आपको कभी इधर से लेके जाएंगे, कभी उधर लेके जाएंगे, कभी पूछेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं कि ज़िंदा हैं, उन्होंने वापस आना है। तो उस काणे के ये जो चेले हैं, उनसे बचने के लिए दुनियावी तौर पे अगर कोई ऐसा मुसलमान जिसके पास कोई ज़्यादा नॉलेज, चले ये कहने ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो ना, आम बंदा हो, तो उसको कैसे बचना चाहिए? अगर कोई आप कोई रोशनी डालें इस पे। देखिए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए उसवा हसना है, ठीक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसके ऊपर हमें बाकायदा उसकी तरबियत ना मिली हो, ठीक है। अब हमें आपस में जो हम लोग, हमारा ताल्लुक है मुसलमान का एक मुसलमान के साथ, वो मुसलमानों वाला नहीं है। हम मुसलमान एक दूसरे को तकवीयत देने की जगह पर उनको तोड़ देते हैं, उनको कमज़ोर करते हैं। जब हम अपने आप को तकवीयत देना शुरू कर देंगे, फिर कोई भी ताकत जो है वो मुसलमानों को हिला नहीं सकती। मैं क्या करूंगी, हम लोग जब बैठे होंगे तो हम कहेंगे हम मुसलमान हैं, लेकिन मैं अपनी ब्रॉड पर बैठी होंगी, मैं सिंधु को कमज़ोर करूंगी, मैं सिंधु को कमज़ोर करूंगी, वो मुझे किसी और जगह पे कमज़ोर कर रहा होगा। तो जब तक हम आपस में मुत्तहिद नहीं होंगे, आपस में हमारा इत्तेहाद नहीं होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मासलुल मुमिनीना मासलुल जसद, कि एक मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे एक जिस्म की मानिंद है। जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है, पूरा जिस्म तकलीफ में होता है। जब तक हम अपने लोगों को, हालांकि हमारे बहुत सारे मुसलमान लोग जो हैं वो की आवाज नहीं आ रही।
लगता है उनकी कोई कॉल वगैरह आ गई होगी, आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਡਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਅਹਿਮਦੀਆ ਕੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਖੰਜ਼ੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ- ਚੇਲੇ ਚ ਪੜ ਜੀ देखो पहला तो ਤੁਸੀਂ खिलाफ वर्जी करते हो। आज ससुर ने कहा कि किसी के पीर झूठे को उसको झूठा मत कहो। आज ससुर का ये फरमान है, क्योंकि वो आपके सच्चे को कहोगा ये तो आप बहुत बुरी बात करते हो। किसी ने किसी को मारा, आप झूठा भी उसको मानते हो, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट ये सलाम है। अगर आप मुसलमान हैं मेरे भाई, तो जे अगर उसको गालियाँ निकालोगे तो फिर समझो आप गधे हैं। सीधी सी बात है। सलाम तो नहीं नासिर साहब रुक जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये भी है कि मेरे बाद 30 झूठे और कज़ाब आएंगे, दज्जाल आएंगे, ठीक है। तो उन झूठे और कज़ाबों को, जो नबूवत के दावेदार झूठे हैं, उनको कज़ाब दज्जाल कहना कोई बुरी बात नहीं है। ये हमारे ईमान का बेसिक हिस्सा है, ख़त्म नबूवत पे ईमान रखना। ਐਵੇਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਨਾ ਤੀਸਰਾ ਕਲਮਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਕਲਮਾ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਹੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਦੁਆਏ ਕਨੂਦ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ। पर मेरी बात तुसी समझियो। मैं है बात तो सुनो ना। ये जो दीन है साडे मामे दा पुत्र नहीं, तो लड़ना जड़ा है वो जाहलों का काम है। दीन अल्लाह ताला का है। दीन अल्लाह ताला का है और हमने नामूसे रसालत के पहरेदार हैं, मरते दम तक देते रहेंगे। आप दुआए कनूत सुनाएं जरा, बिस्मिल्लाह करें, दुआए कनूत सुनाएं। यार थोड़ा सारी बात कादा पैरा कदी देते होगे? इशा दी नमाज पढ़ी जे जिंदगी च? कोई आपकी इशा दी नमाज कदी जिंदगी च पढ़ी जे? यार मैं नमाज कभी कोई भी नहीं छोड़ी। आप करने के लिए आप मुझे कुछ दे दे। चले फित्रों में जो दुआए कनूत पढ़ते हैं वो सुनाएं जरा। तो आपको सुनाऊंगा तो आप क्या करेंगे? मैं आपसे सीखूंगा कि मेरे बड़े प्यारे भाई हैं तो जिनका ईमान। हाँ जी ठीक है। मेरे से ये सीखो कि जो नहीं आप पहले दुआए कनूत सुनाए। मैं पहले दुआए कनूत सीखना चाहता हूँ। जो सुनाए जरा। कहते हो कि खत्मे नबूवत का पैरा बिस्मिल्लाह करें, दुआए कनूत सुनाएं, छोड़ें सारी बातें। दुआए कनूत सुनाएं। खत्मे नबूवत दुआए कनूत, दुआए कनूत। ओ बात नहीं दुआए कनूत, पहले दुआए कनूत, पहले दुआए कनूत, पहले दुआए कनूत। खत्मे मैं कह रहा हूँ नबूवत पहले दुआए कनूत, आगे नहीं बात चलेगी। जिंदगी में कभी नमाज पढ़ी है तो दुआए कनूत सुनाए जरा, बिस्मिल्लाह करें। तो वो जो खत्मे नबूवत है, दुआए कनूत, पहले दुआए कनूत, पहले दुआए कनूत, बाकी आप सारी उसकी बातें बाद हिफाजत में। क्या करते हो? वो खरबूजे पहले दुआए तोड़ के ले कनूत, चल रहा है। दुआए कनूत सुनाए पहले। आती है कि नहीं आती? नहीं आती बताएं, मैं सुनाता हूँ। ओ मैं क्यों आपको सुनाऊं? आपसे सुनूं? मुझे क्या आप चलें आप सुना देना, दुआए कनूत सुनाएं आप मुझे। पर क्यों मैं आपको सुनाऊं? बात चलें तीसरा कलमा सुना दें। नहीं, मैं तीसरा कलमा भी नहीं सुनाना। इशा की नमाज में कितनी रकातें होती हैं ये बता दें। ओ यार आपने बात कर दी है या ये बातें मैं आपसे पूछ रहा हूँ फजर की नमाज में कितने फर्ज होते हैं और कितनी सुनते होती हैं ये बता दें। और मैं कहता हूँ ये अपने बच्चों से छोटों से पूछते हैं। आप ये रकाते में पूछने के लिए बैठे हो। जी मैं आपसे सीखना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे बताएं कितनी फजर की नमाज में। मेरे से सीखो कि किसी पहले दुआए कनूत, पहले झूठे को भी झूठा नहीं कहना। ओके ना पहले दुआए कनूत, पहले तीसरा कलमा। चले इस्लाम के 5 कितने बुनियादी अरकान जो हैं इस्लाम के वो बता दे कौन से हैं। यार पता है आपको? कमाल हो गई है यार।
भाईजान मैं आपसे पूछ रोटी रहा हूँ कपड़ा इस्लाम- और संधू मकान। साहब मैं जरा एक 10 सेकंड के लिए आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि ये जिससे आप बात कर रहे हैं मैं नहीं जानता इनको, आप शायद जानते होंगे। आया कि ये किसी के और खुदा को रखते हैं, ये कहते हैं कि दूसरे के खुदाओं को नहीं बात करनी चाहिए, इस बात का जवाब दे दें खुदाओं सर। को नहीं, खुदाओं को नहीं, किसी को भी जो जो आपने उस जनाब आपने खुदाओं को बोला है, ये जमा का बोला है आपने। मैंने कहा कि किसी का पीर झूठे पीर, अगर आपके मुताबिक वो झूठा पीर है ना, उसको भी ये झूठा मत पीर वाला कहो। तो तुम्हारी मैम का फोन है।